गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हैं आप? Shivangi, how are you? I'm good, thank you. फाइन मैम, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। तो आपका आज फिर से वेलकम करते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर एक न्यू वेबिनार के टॉपिक के साथ। आई होप जितना भी पर्सन्स के डाउट्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए आपके थ्रू उनको सब मिल जाएगा आज। तो जैसा कि अपना टॉपिक Thank का you. वेबिनार का टॉपिक है स्पीक टू योर पार्टनर इन देयर लव लैंग्वेजेस। तो मैम प्लीज इसके रिगार्डिंग आप इंफॉर्मेशन दीजिए। लव लैंग्वेजेस क्या होती हैं, कितने तरह की होती हैं, एंड व्हाई डू पीपल नीड देम। तो प्लीज आप स्टार्ट Okay. करें। Firstly, thank you, Shivangi, for inviting me for this talk. And the Healing Home Wellness is doing such a great job. Why? It is because they are working for Ayurvedic things and, for the holistic treatment for their working. And as you know, Ayurveda is a very ancient यस science मैम। for India. And the great part about Healing Home Wellness is that they are not only towards the Ayurveda part, they are understanding how important it is to have a healthy mind also. So it is such a nice thing about this. So I'm really thankful for you people to coming out with these topics. And once again, I would like to tell you that according to the survey, Shivangi, only 1% people are happy. So you can understand how, what is the situation and how it is going to, going to affect the future generation. This is really shocking, So ma'am, to hear such a news it is, that also in you early must, morning. That is, like a country like India where diverse culture is there, only 1% people are happy. only 1% people are happy, because since I'm in this field, so I keep reading about this and I keep Uh, doing the surveys and all. So just 1%, just imagine the situation. it is So why this love language is very important nowadays? People are facing a lot of problem in their relationship correct, correct, ma'am. because of the culture, the work culture. These things are affecting their love life, their relationship, and not only husband wife or girlfriend boyfriend, even normal relations also getting affected, because people are not having time and people are not able to understand, because ये जो भाग दौड़ की चीज हो रही है ना, लोगों को समझ नहीं आ रहा है। तो Correct, correct, अगर हम ma'am. इन ये लव लैंग्वेज को समझने की कोशिश करें, जी। तो हम शायद उसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकेंगे। So I'll tell you these 5 love languages was given by Gary Chapman. He's a famous psychologist. Okay. So there are 5 love languages. One is word of affirmations. Second is act of service. Okay. Third is receiving gifts. Okay. Fourth is quality time. And fifth is physical touch. So why you need to recognize the love language of your partner or your relative or your friend, Yes, so ma'am. that you can build up your relationship better and stronger, and you understand that one person cannot have all kind of this thing ki मतलब उसको ये भी करेगा, वो ये भी करेगा, या वो भी करेगा, या वो भी। एक पर्सन में एक मतलब एक पर्सनालिटी ट्रेट होता है, एक इंसान की होती है। तो हमको ये Okay. समझने है कि अगर कोई मेरे लिए ये कर रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो ये भी कर सकता Correct. है। अगर हम उसको आइडेंटिफाई कर लें, तो हमारा रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाएगा। हम समझने की कोशिश करेंगे कि ठीक है, अगर हर किसी में एक क्वालिटी नहीं होती है, हर किसी जी। में डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज होती हैं अपने लव को, Correct. अपनी मतलब अपने किसी एक भाषा में वो अपने चीज को समझा सकता है। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। लाइक लेट्स टेक द फर्स्ट वन, वर्ड ऑफ अफर्मेशंस। ठीक Yes, है, yes. वर्ड ऑफ अफर्मेशन में क्या है कि जैसे होता है ना, कोई किसी की कोई होता है कि कोई बहुत तारीफ करता है, कोई किसी को अप्रिशिएट करता है। जी। आप किसी के बारे में बहुत अच्छी बातें करता है, जब आप वहां नहीं होते हो तो आपके बारे में बहुत अच्छी बातें करता है, यू नो बिकॉज जब आप नहीं हो जहां पे, वहां पे आपके बारे में कोई अच्छी बात कर रहा है, इट मीन दैट पर्सन रियली लाइक्स यू।
करेक्ट करेक्ट। और जनरली ये महिलाओं में ये ज्यादा वो होता है कि दे वांट दिस काइंड ऑफ थिंग, सो इट्स वेरी, आई मीन, इसके लिए कोई जज करने की जरूरत नहीं है, दे आर मेड लाइक दैट। इट्स नॉट दैट कि मेन डोंट वांट, तारीफ पसंद है, सबको अच्छा लगता है अपने लिए तारीफ सुनना, बट हाँ मतलब लेडीज को थोड़ा सा होता है कि मतलब उनको ये अच्छा लगता है। ये कुछ लोग होते हैं ना कि जैसे एनिवर्सरी या कोई स्पेशल ओकेजन पे कोई एक लाइन, हैप्पी बर्थडे या हैप्पी एनिवर्सरी, बट देयर आर पीपल लंबा एंड यू डू दिस या एंड ऑल। या तो दिस इज वर्ड ऑफ अफर्मेशन या होता है ना, तो करेक्ट अलग करेक्ट। अलग तरीके होते हैं, बट कुछ लोग होते हैं कि बट ठीक है हैप्पी बर्थडे लिख दिया हो गया, इट्स ओके। सो ये उनकी क्वालिटी है, और एक ये दूसरे बंदे की क्वालिटी है, ठीक है। सो दिस इज वन लव लैंग्वेज। द सेकेंड वन, एक्ट्स ऑफ सर्विस, लाइक यू टेक एन एक्स्ट्रा माइल स्टेप लेते हो टू, इट इज नॉट दैट टू शो योर लव, यू रियली लव देम, यू रियली लाइक देम, यू वांट देम टू बी हैप्पी, तो ये आपका दूसरा तरीका है, एक्ट ऑफ सर्विस। इट्स लाइक आप किसी के लिए कुछ करो। आई टेल यू वन स्मॉल एग्जांपल, लाइक in my family, like my husband is not that type ki, saying I love you or holding hand or doing, these things, but I have understood over the years that I have understood that his only aim in life is to make his wife happy. मुझे ये इतना मुझे पता है कि he will do everything to make me happy, whatever, like मुझे जो कुछ भी पसंद है वो सब कुछ करेंगे वो, चाहे चाहे वो ही इज, चाहे वो कुछ भी है, चाहे वो कितना भी बड़े पोस्ट पर है, चाहे वो कुछ भी है, लेकिन अगर मेरी मेड नहीं आएगी तो, जबकि मैं घर में अगर बैठी हूँ फ्री हूँ तो भी, इफ आई एम कुकिंग, he will not come in the kitchen, but if he'll see कि बर्तन का पूरा पाइल पड़ा हुआ, तो he said okay let me clean the plates, मैं प्लेट्स ही क्लीन करके रख देता हूँ, वो आई लव यू मुझे नहीं बोलेंगे, बट मुझे पता है वो ये जरूर कर देंगे। या फिर कल, जैसे कल ही का इंसिडेंट हुआ कि मेरी मेड नहीं आई थी कुकिंग वाली, तो शाम को ही सेड कि वाई आर यू कुकिंग, लेट्स ऑर्डर समथिंग, क्या परेशान हो रहे हो गर्मी में किचन में, लेट्स ऑर्डर समथिंग। सो एक्ट ऑफ सर्विस, तो आई हैव टू आइडेंटिफाई द लव लैंग्वेज ऑफ द अदर पर्सन। तो नाउ आई नो कि ठीक है वो आई लव यू नहीं बोल सकते, वो हर बार मुझे हग नहीं कर सकते, मुझे फ्लावर लेके नहीं दे सकते, बट मुझे पता है कि वो हर वक्त शॉपिंग लिस्ट में यही देखते रहते हैं कि अच्छा इसके लिए क्या शॉपिंग मैं कर दूं, और ये सारी चीजें ना, तो दिस इज एक्ट ऑफ सर्विस। तो बहुत से लोग, अलग अलग तरीका होता है इसको करने का। सो दैट अनदर लव लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड फ्रॉम योर फ्रेंड, योर लव्ड वन, योर बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, योर पार्टनर, जो भी है। तो अगर वो नहीं भी, दूसरा पहला वाला नहीं भी करते हैं, तो आपको देखना, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कुछ तो कर रहे हैं ना ऐसी चीज जो कि विच इज शोइंग हिज और हर लव। कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी अगर किसी रिलेशन में कम्युनिकेशन नहीं है तो रिलेशनशिप नहीं आगे बढ़ सकती है कभी भी, चाहे, लेकिन अपना अपना एक तरीका होता है कम्युनिकेट करने कम्युनिकेशन करने का। करेक्ट। नाउ द थर्ड वन इज रिसीविंग गिफ्ट, ठीक है। कुछ लोग होते हैं गिफ्ट देना और गिफ्ट लेना उनको बहुत पसंद होता है, कि कोई जाएगा, ऐसा नहीं कि उसकी जरूरत है, बट जैसे ना, अब मैं उस घर जा रहा हूं तो मैं कैसे यार खाली हाथ में कैसे जाऊं किसी के घर ना। तो एट द सेम टाइम वो इंसान क्या होता है, वो दूसरे से एक्सपेक्ट भी करता है। इट इज डिपेंड नॉट दैट करता कि है। उसको कोई लालच है या कोई ऐसा, नहीं नहीं मेरे घर आओ, तो नो, इट इज हिज, मतलब उसकी पर्सनैलिटी है ये, ऐसा एक उसका तरीका है अपना प्यार दिखाने का और दूसरे की तरफ से प्यार देखने का। इट कोई जरूरी नहीं कि बड़ा सा बॉक्स गिफ्ट का हो, एक छोटा सा रोज ही किसी के लिए लेके जाओ तो उसको पसंद आता है, उसको अच्छा लगता है ये। तो एक ये तीसरा है लव लैंग्वेज की, मतलब रिसीविंग गिफ्ट्स और एक दूसरे को गिफ्ट्स देना। एंड द फोर्थ वन इज क्वालिटी टाइम। कुछ लोगों को कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है ना, उनको वर्ड ऑफ अफर्मेशन चाहिए, ना ही वो एक्ट ऑफ सर्विस चाहिए, ना ही वो रिसीविंग। कुछ लोगों को होता है कि नहीं, मेरे साथ तुम क्वालिटी टाइम ही बिताओ, आप चाहे चाहे वो फ्रेंड है चाहे वो कोई भी हो, हम साथ में बैठ के चलो एक वेब सीरीज ही देखते हैं एक साथ बैठ करके, या मूवी एक साथ देखेंगे, या हम वॉक करने एक साथ जाएंगे। वो जो क्वालिटी टाइम होता है ना एक दूसरे के साथ बैठ करके, किन्हीं किसी किसी चीज पर हम डिस्कस करेंगे, किसी चीज के बारे में हम बात करेंगे, तो उनको ना कोई गिफ्ट से मतलब है, ना उनको कोई पैसे से मतलब है, ना उनको उनको वो क्वालिटी टाइम बहुत पसंद होता है।
तो ये एक उनका लव लैंग्वेज है, सबका अलग 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 तरीका अलग होगा। होता है। करेक्ट एंड करेक्ट। दिस अलग अलग होता है। एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट वन इज फिजिकल टच, दैट इज नॉन सेक्सुअल टच। सी, having a sex with your partner is not act of this thing. It is not that कि हाँ ठीक है, मतलब एक वही टच है, ठीक है। No, it is not that. किसी को होता ना कडल करना, हाथ पकड़ना, हग करना, किस करना, कोई भी हो ऐसे, तो वो जो फिजिकल टच होता है ना, नॉन सेक्सुअल टच, वो बहुत अच्छा लगता है किसी को, कि हाथ पकड़ के ही बैठे हुए हैं, हम चल रहे हैं तो हाथ पकड़ के बैठ रहे हैं, या बाहर जा रहे हैं तो एक दूसरे को हक करके ओके मैं जा रहा हूँ या मैं जा रही हूँ। किस करना अच्छा लगता है किसी को, मतलब नहीं शोल्डर पे सर रख के बैठे हुए हैं, वो अच्छा लगता है। दैट इज अनदर फॉर्म ऑफ that is another love language. So these are 5 love languages. Now why you need to recognize them to build a stronger relation? Because अगर हम एक ही चीज के पीछे परेशान रहेंगे कि तुम तो क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड करती हो मेरे साथ या करते हो, तुम तो कुछ बोलते नहीं हो, तुम मेरे लिए कुछ करते नहीं हो, या ये फिजिकल टच ही नहीं है हमारे बीच में, मेरे लिए तो तुम कुछ लाते ही नहीं हो, कोई एक चीज तो होगी किसी में, करेक्ट। किसी ना किसी कोई में एक कुछ ना चीज कुछ तो तो होगी, होता है, हाँ, बस वो कुछ आइडेंटिफाई न कुछ करना तो पड़ता होता है। है। हाँ, अगर 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 इन सब में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब वो ऑनेस्टली स्पीकिंग वो कोई रिलेशन नहीं है। इट इज जस्ट दैट कि आप एक रिलेशन को बस ठीक है ढो रहे हो। सिर्फ आई लव यू कह देने से किसी को आई लव यू नहीं होता है। लव लैंग्वेज तो होनी इंपॉर्टेंट है ही। अगर इन सब में से कुछ भी नहीं है, इसका मतलब वो रिस्पेक्ट नहीं है आपको अपने पार्टनर के लिए, और लव नहीं है। इट इज जस्ट दैट कि हाँ ठीक है एक रिलेशन है, उसको आप ढोए जा रहे हो, चल रहा है, ठीक है चलने दो। सो that is how, and that is why it is important to identify the love language of your partner, so that you have a stronger relationship and you understand your partner. करेक्ट करेक्ट। और इसमें ऐसा भी रहता है कि आपने अगर नहीं समझे तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स फिर किसी भी रिलेशनशिप में अराइज होने लगती हैं। और इसीलिए इन लव लैंग्वेजेस को आई थिंक समझना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब आप तो मैरिड हैं और काफी टाइम हो गया है, तो ओवर द टाइम पीपल रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये नहीं है तो बट ये है, तो उनको समझ आता है। बट जो न्यू पीपल रहते हैं, मतलब जिनके भी टाइम नहीं हुआ है रिलेशनशिप को ज्यादा, जैसे न्यूली मैरिड है या न्यू बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बने हैं, तो मैम उनके लिए आप कुछ सजेस्ट करना चाहोगे कि वो स्टार्टिंग में कैसे, मतलब बेस बन सकता है उनका, कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं स्टार्टिंग से ही, और कैसे इंटरप्रेट हो सकते हैं, लोग कर सकते हैं अपने रिलेशन को, क्योंकि एकदम से स्टार्टिंग में कोई ओपन अप भी नहीं होता है इतना ज्यादा, तो वो भी थोड़ा सा इशू रहता है। फिर किसी किसी रिलेशनशिप में टाइम लग जाता है, फिर किसी में नहीं लगता है, तो बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस रहते हैं, ऑल्सो पीपल्स पे भी डिपेंड करता है। तो इसके रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहते हो? हाँ, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, बिकॉज क्या हो रहा है आजकल, डिवोर्स केस भी बहुत शिवांगी ज्यादा रश। 350% बढ़े हैं, 350%। ये सो आज बहुत शॉकिंग न्यूज मिल रही है। मतलब वेदर फोरकास्ट की मिलनी चाहिए थी एज रेनी सीजन इज कमिंग, बट ये जो मतलब है, ये काफी हाँ, ज्यादा शॉकिंग है। बिकॉज सी आई टेल यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा और ये बहुत जरूरी है। एंड अगेन आई एम सेइंग कि ये सारे टॉपिक्स आप आयुर्वेदा में डील करते हो, उसके बाद भी आप ऐसे लोगों के लिए ऐसी इंफॉर्मेशन ला रहे हो और बता रहे हो, इट इज रियली गोइंग टू हेल्प पीपल। तो फर्स्टली जो होता है ना, आपका जो क्वेश्चन है कि कैसे कम्युनिकेट करें एक दूसरे को, न्यूली मैरिड या न्यूली रिलेशंस कुछ भी है, पहले तो हमेशा अपनी इनसिक्योरिटीज अपने पार्टनर को जरूर कन्वे करिए। आप बताइए कि मुझे ये चीज पसंद आई और मुझे ये नहीं पसंद आई, आप किसी भी रिलेशन में हो, आप जरूर बताइए। और अगर आपको बार बार कहने के बाद भी वो चीज इंप्रूव नहीं हो रही है, इसका मतलब आपके रिलेशन में कोई रिस्पेक्ट और लव नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं ये नहीं कहती कि इंसान की पर्सनालिटी बदल जाएगी, बट कुछ तो चेंज आना चाहिए। अगर बिल्कुल नहीं चेंज आ रहा है तो इट मीन्स कि कोई लव और कोई वो नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है उसमें। और इनमें से कोई तो एक क्वालिटी होनी चाहिए ना, जो ये 5 लव लैंग्वेज हमने बताई। तो पहली बात तो दोनों को ये समझने की जरूरत है और आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि भाई इसमें से कोई तो एक चीज है मेरे पार्टनर में कि जो वो फॉलो कर रही है या कर रहा है,
तो अंडरस्टैंड कि ये उसकी पर्सनालिटी है और ये यही कर सकता है। जैसे एक्ट ऑफ सर्विस है मेरे हस्बैंड का, मैंने बताया जी कि जी। मुझे पता है कि वो मेरे लिए कुछ भी करेंगे, कुछ भी करेंगे। वो भले ही मेरा हाथ पकड़ के ना घूमे, मुझे आई लव यू ना कहें, मुझे हग ना करें, मुझे कडल ना करें, बट मुझे पता है टू मेक मी हैप्पी ही विल डू एनीथिंग। करेक्ट करेक्ट। एनीथिंग मीन्स एनीथिंग, दैट आई नो, दैट आई हैव आइडेंटिफाइड। मुझे पता है कि वो सब कुछ, वो इवन इफ ही इज सिटिंग विद द टॉप मोस्ट बॉस, अपने मीटिंग ले रहे हैं, एंड इफ आई गिव अ कॉल ही विल टेल हिम कि जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई माय मेरी वाइफ का कॉल आया है। तो ये मुझे पता है, चाहे वो किसी के साथ भी बैठे, वो इतना जरूर कहेंगे कि हाँ मैं जरा बिजी हूं, मैं आपको कॉल करता हूँ। ऐसा नहीं कि वो मेरी कॉल को इग्नोर ही कर देंगे। जी तो जी। दिस आई नो। तो मैं ये कह रही हूँ, अपनी इनसिक्योरिटीज न्यूली रिलेशंस को जरूर कन्वे करना चाहिए, अपने पार्टनर को बताना चाहिए। और हम्म, अगर नहीं चेंज हो रहा है तो उस पर काम करने की जरूरत है, उस पर बैठ के बात करने की जरूरत है। एंड जी सेकेंडली, इनमें से एक क्वालिटी को जरूर अपने पार्टनर में आइडेंटिफाई करिए और उसको धीरे धीरे इंप्रूव करने की कोशिश करिए। आई एम श्योर इफ दे आर जेन्युइन जी। and if they have any respect for you, they will certainly work towards to for the improvement for the relationship, and it will work. ओके ओके, मतलब अब आई थिंक बहुत ज्यादा इफेक्टिव ये चीज रहेगी, मतलब अंडरस्टैंड करने में, क्योंकि बहुत सारी चीजें रहती है तो आधे से टाइम तो लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं, ऑन है या ऑफ है। बट ये एक अच्छा क्लैरिटी के पॉइंट्स है, जिससे क्लैरिटी मिलेगी लोगों को, अगर ये चीज है तो मतलब पॉजिटिव साइन शो हो रहा है नेक्स्ट पर्सन की तरफ से। इट थैंक यू इज सो वेरी मच। इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अपने पार्टनर को हमेशा कम्युनिकेट करना जरूरी है। और जी अगर आप बार बार कम्युनिकेट कर रहे हो और आपका पार्टनर नहीं समझ रहा है, आपका फ्रेंड या जो भी नहीं समझ रहा है, तो जी। आई थिंक इट इज बेटर टू टॉक इट आउट एंड एक्सप्लेन योर इनसिक्योरिटीज। अपने बारे में जरूर बात करनी चाहिए। कभी कभी मैम जो इनिशियल फेस रहता है, अगर उसमें इनसिक्योरिटी की बात करें तो फिर सामने वाला पर्सन जजमेंटल हो जाता है थोड़ा सा, कि ये इतना ज्यादा इनकी कंप्लेंट्स हैं, वो उसको ये नहीं समझते कि वो उनके मन में जो है वो चीज को एक्सप्रेस कर रहे हैं, मतलब ट्रस्ट करके, बट वो उसको एज अ कंप्लेन लेने लगता है कि तुम्हारी हमसे इतनी ज्यादा कंप्लेंट्स होती हैं, हर बार हाँ कंप्लेंट्स हाँ। होती हैं। तो मैम ये चीज सब में होती है या सरकमस्टेंसेस के थ्रू आ जाती है, या क्या होता है? हमने काफी ज्यादा केसेस ऐसे देखे हैं। हाँ, या यू आर राइट। जी एक्चुअली क्या होता है शिवांगी, जब भी आप ना, जी जैसे ये कोई कहता है कंप्लेन, जी अगर कोई भी रियली डेडिकेटेड है, अगर जी सच में रिलेशन को रिस्पेक्ट करता है, वो इज्जत करता है, जी तो वो हम कभी नहीं कहेगा कि कंप्लेनिंग है या फिर वो। अगर ऐसा कुछ है, और अगर सीरियसली इफ समबडी इज रियल, कोई अगर चाहता है कि सच में ये रिलेशन काम करे, जी तो वो उसकी जो भी हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो जरूर उस चीज को, चाहे वो फ्रेंड हो या रिलेटिव हो, हम्म, उसको क्लेरिफाई करने की कोशिश जरूर करेगा। वो कभी कंप्लेन नहीं समझेगा, कभी उसको बर्डन नहीं समझेगा, कभी, अगर सच में उस रिलेशन पे काम करना चाहता है। ठीक है, इंट्रोस्पेक्ट जरूर करना चाहिए अपने आप को, जैसे बार बार किसी चीज को, तो वो हमको भी बैठ के समझने की जरूरत है जी कि क्या बहुत ज्यादा हो रहा है, क्या मैं बहुत ज्यादा कंप्लेन कर रहा हूँ, क्या मैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा हूँ। उस पे भी बात करने की जरूरत है, और खुद बैठ के सोचने की जरूरत है, हमेशा आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। क्या ऐसा नहीं होता कि आप किसी से बात करना चाह रहे हो या किसी से अपनी बात कहना चाह रहे हो, तो जी। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप दिन में, आप महीने में 10 बार, मतलब महीने भर किसी के पास टाइम नहीं है बात करने का, दो दो करेक्ट। महीने बात करने का या चीजें, देन इट इज रियली रॉन्ग। लेकिन हाँ, अगर आप सुबह दोपहर शाम ही आप कंप्लेन कर रहे हो, सुबह दोपहर शाम ही बात कर रहे, वो परेशान कर रहे हो, यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड उसको देखना पड़ेगा। कोई जरूरी नहीं है कि जो इंसान बात कह रहा है, मैंने बताया ना कि 2-2 महीने तक अगर कोई बात नहीं कर रहा है और कह रहा है नहीं तुम तो कंप्लेन कर रहे हो या कर जी रही हो, जी। देन यू कैन अंडरस्टैंड देयर इज समथिंग रॉन्ग ना। रिलेशनशिप ऐसे नहीं चलती ना। करेक्ट करेक्ट। क्योंकि कब ऐसे आप केसेस आप में भी, आइडेंटिफाई कर सकते हो। हाँ हमने भी ऐसे केसेस देखे हैं कि मतलब कुछ मंथ या कुछ इयर्स तक स्टार्टिंग में सब सही रहता है, अगर आप कंप्लेन भी, मतलब ऐसा कुछ इशू रेस करो तो वो उसको ऐसा कंप्लेन का नेम नहीं देंगे, उस टाइम उसको अच्छे से हैंडल करेंगे, बट ओवर द इयर्स अगर सेम चीज हो जाए, क्योंकि पर्सन को पूरा चेंज होने में इट्स रियली डिफिकल्ट, तो उनका वो जो नेचर रहता है वो कंसिस्टेंट रहता है,
तो जब ओवर द टाइम चीजें होती हैं और वही चीज वो बोले तो फिर पर्सन सामने वाले इंसान को वो कंप्लेन लगने लगती है। तो मैम ये इशू क्यों फेस होता है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये चीज हमने देखी गई है। इनफैक्ट न्यूज़पेपर में भी ये चीज शो हो रही है, वहां पे आती हैं और काफी ज्यादा हम पर्सन से मिलते हैं, वो खुद हमें ये चीज बताते हैं। तो ये किस कारण से हो रहा है? इस कारण से हो रहा है, जब भी रिलेशनशिप में आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, जब भी आप रिलेशनशिप को स्ट्रांग नहीं बनाना चाहते हो, या फिर दैट पर्सन डजंट मैटर टू यू। अगर आपको सच में, मैंने एज आई सेड पहले भी मैंने आपको बोला, अगर सच में आप रिलेशन को ठीक करना चाहते हो तो आप सोल्यूशन लेके आओगे, ना कि सामने वाले बंदे को या बंदी को आप प्रॉब्लम बोलोगे। आपको वही ना, इंट्रोस्पेक्ट करना, हमको भी देखना है कि हाँ, कहीं सच में बहुत ज्यादा कंप्लेन तो नहीं कर रहे हैं हम, जी। कहीं सच में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट कर रहे हैं हम। हम्म, और ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आपको बार बार एक ही बात किसी को रिपीट करनी पड़ रही है एंड यू आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट, सो वन शुड अंडरस्टैंड कि भाई जी कुछ है नहीं। जी इट इज जस्ट दैट कि समवन इज जस्ट प्लेइंग विद द इमोशन। जी और क्योंकि अगर सच में आपको कोई पसंद करता है और चाहता है तो आपको एक ही चीज बार बार नहीं रिपीट करनी पड़ती है इन एनी रिलेशन। जी जी, करेक्ट। तो ये काफी अच्छा पॉइंट है, मतलब चीजों को समझने के लिए कि अगर ये चीज हो रही है तो ये पॉजिटिव है, और नहीं हो रही है तो यू हैव टू कट योर सेल्फ आउट फ्रॉम दैट रिलेशनशिप, आई थिंक। करना जरूरी है, बिकॉज उससे क्या है, आप सामने वाले इंसान को भी फ्री करते हो और खुद भी। ठीक है, जो ऑनेस्ट है, जो लॉयल है, जो रिलेशन को आगे, उसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है, करेक्ट बिकॉज यू फील यू फील बैड, ऑफ कोर्स यू करेक्ट फील करेक्ट, बैड। वी आर बट द ह्यूमंस, थिंग वी इज, फील अगर थिंग्स। एक ही चीज, जी या अगर आप एक ही चीज बार बार रिपीट कर रहे हो, बार बार रिपीट करो और आपको वापस हमेशा वही चीज मिल रही है, जी इट मीन्स इट इज नॉट वर्किंग। एंड एज जी, आई सेड, व्हेन वी टॉक्ड अबाउट दीज 5 लव लैंग्वेजेस, ये पांचों में से कुछ तो होना चाहिए ना, किसी रिलेशन में कहीं से करेक्ट कुछ तो करेक्ट होना चाहिए ना। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल। और फिर इससे हम्म। मेंटल फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इस पे भी काफी ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब केसेस अरे भी योर देखे लाइफ गए। गोज अपसाइड डाउन। हाँ, मोस्ट ऑफ द डिप्रेशन और एंजाइटी केसेस मैम इस चीज की वजह से आते हैं। मतलब फैमिली में देख लो आप, या रिलेशनशिप में देख लो, मतलब अगर उनको डिप्रेशन और एंजाइटी है तो कहीं ना कहीं ये इशू तो रहेगा ही, आई थिंक। तो मैम इसके हम्म। रिगार्डिंग आप कुछ हेल्थ सप्लीमेंट्स कुछ ऐसे सजेस्ट करना चाहते हो, जो मतलब आप मतलब पहले भी बोलते हो योगा वगैरह से तो ठीक हो सकता है, बट इन केस इफ पर्सन वांट्स टू ऐड समथिंग फ्रॉम आउटसाइड, लाइक सप्लीमेंट्स हो गए, प्रॉपर डाइट हो गई, तो उसमें आप क्या सजेस्ट करना चाहते हो? Yeah, of course. Firstly, Ayurveda is something really, really good for it. करेक्ट है। एंड व्हाट आई हैव यूज्ड, जो मैंने यूज किया है जी, अपने लिए, वो मैं जरूर बताना चाहूंगी व्यूवर्स को कि बिल्कुल। जैसे हल्दी, जी और हल्दी में ना, जैसे नींद अगर नहीं आती हो, आप जी, हल्दी दूध जब भी पीते हो उसमें आप जायफल अगर ऐड करके बॉईल करो, जायफल होता है ना करेक्ट जो करेक्ट, या नॉर्मल, जायफल, हाँ हाँ। उसको अगर आप ग्रेट करके, हाँ जी, अगर आप जी रात को सोने से 1 घंटा पहले हल्दी में थोड़ा सा जायफल डाल के उबाल के पियो, जी, आपको साउंड स्लीप आती है। ओके। हर्बल टीज जो होते हैं जी वो काफी इफेक्टिव होते हैं, काफी कामिंग होते हैं, काफी सूदिंग होते हैं। जी एंड एलोपैथिक और मेडिसिन से थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करना चाहिए। जी जब भी आपको डिप्रेशन या एंजाइटी हो, आई नो इमीडिएट उसमें लेना पड़ता है जी बहुत जी जी, ज्यादा, अगर ये काफी एट हाई क्रॉनिक हो गया लेवल। है, काफी, जी हाँ, इनिशियल। बट ट्राई एंड ऑलवेज अपने एक्टिविटीज से, फिजिकल एक्टिविटीज से, मेडिटेशन से, एंड ऑल दीज आयुर्वेदिक एंड हर्बल थिंग्स जो है, चाहे वो हल्दी है, चाहे हर्बल टी है, या और भी बहुत से ऐसे मेथड्स हैं। और जी आजकल हमारे पास इट्स सच ए एंशियंट थिंग, मतलब एज आई सेड ना, योगा और आयुर्वेदा तो सिस्टर्स वो बोले जाते हैं ना, साइंस, जी सिस्टर जी साइंस, जी जी दे जी वर्क टुगेदर, वो जी एक साथ काम करते हैं। जी तो हमको हमेशा इसी के साथ जाना चाहिए, एंड ट्रस्ट मी, ये लॉन्ग रन में आपको बहुत इफेक्ट देगा। आप जब भी एलोपैथिक मेडिसिन खाते हो ना, पेन किलर है या एंटी डिप्रेसेंट है, कुछ भी ऐसी चीज है, जब आप खाते हो ना, जी मॉर्निंग में बिलीव मी आपका सर बहुत भारी होगा, आपको सर दर्द होगा, आपको प्रॉब्लम होगा, आपकी आंखें अंदर घुस जाएंगी, आपको नींद तो आ जाएगी, लेकिन सुबह आप मतलब अच्छा नहीं फील करोगे। बट जब जी भी जी आप आयुर्वेद की तरफ, हर्बल उसकी तरफ जाते हो ना, जी तो आपको इफेक्ट शायद
तुरंत ना आए, 2 दिन 3 दिन में आए, लेकिन वो जी बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देगा आपको, बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो दिस इज माय रिकमेंडेशन एंड द सर्वे सेज, एंड जो हमने पढ़ा है और जो जी पर्सनल एक्सपीरियंस किया है, आयुर्वेदा एंड हर्बल इज द की थिंग फॉर जी। ऑल दीज प्रॉब्लम्स, ऑल दीज फिजिकल एंड मेंटल इश्यूज बोथ। ओके। मतलब अगर कोई पर्सन इनसे निकलना चाहेगा तो ये उनके लिए अच्छा एग्जाम्पल भी है और अच्छा सजेशन भी है कि आप इसके थ्रू इस चीज को कॉम्बैट कर सकते हो। मैम, सिंस यू आर अ या ऑफ साइकोलॉजिस्ट, कोर्स। सिंस यू आर अ साइकोलॉजिस्ट, आपको काफी सारे केसेस से डील करते हो गए, तो आप कुछ एडवाइस देना चाहते हो व्यूअर्स के लिए, बेसिक इनिशियल स्टेज पे मतलब कैसे रिस्पॉन्ड करें, या अगर कुछ ऐसा कोई फेस कर रहा है तो उसको कैसे सॉल्व करा जाए, इस चीज के रिगार्डिंग आप हाँ कुछ सजेस्ट कर सकते हैं तो प्लीज। या ऑफ कोर्स। जी जो हम स्टडी करते हैं और जो कुछ भी, सबसे पहली बात ना, हमेशा मैं जी तो सारे व्यूवर्स से कहूंगा, ये अपने कान दोनों देखो जी और ये हमेशा सोचो कि ये जो है ना सारी प्रॉब्लम जी यहीं पर है। जी जी। ये दोनों कानों के बीच में ही हमारी प्रॉब्लम है सब कुछ। करेक्ट करेक्ट मैम। और अगर हम अपनी प्रॉब्लम को विजुलाइज करना शुरू कर दें, तो जी हम प्रॉब्लम ही विजुलाइज करेंगे और हम अपनी प्रॉब्लम्स को और अपने सक्सेस को या अपने जो कुछ भी हम लाइफ में इम्प्रूव करना चाहते हैं, चाहे अपनी थॉट्स को ही है, जी। उसको हम अगर रियली 5 मिनट बैठ के विजुलाइज करें। हम्म। विजुअलाइजेशन का तो इतना इफेक्ट है शिवांगी कि जी हम मतलब कराते भी हैं अपने स्टूडेंट्स को या फिर एनीबडी जिनको प्रॉब्लम हो रही है एंड दे आर नॉट एबल टू अचीव देयर गोल। जी वी टेल देम कि 5 मिनट बैठो और अपने आप को विजुलाइज करो कि आप जहां जो सोच करना चाहते हो, जी। आप अपने आप को ये विजुलाइज करो कि आप वहीं खड़े हो और आप वो कर रहे हो। आप ओके अपने कपड़े भी विजुलाइज करो कि वहां आपने क्या पहन के आप खड़े हुए हो। ओके। आपको जिम जाना है आपको, और बिलीव मी, मसल्स लोगों की चेंज हुई हैं, मसल्स, राइट। मसल में मतलब इम्प्रूवमेंट होती है। ये इट हैज सो मच ऑफ पावर, इट हैज करेक्ट। सो मच ऑफ पावर। मिरर से बातें करना, सुबह सुबह उठ के ना 3 4 अफर्मेशन जरूर अपने आप को बोलो, आई एम गुड, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम एनर्जेटिक, जी आई विल सर्टेनली डू दिस। जी सो ये अफर्मेशंस खुद को बताओ। जी एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर आप किसी फेज से गुजर रहे हो, किसी फेज को आप फेस कर रहे हो, जी। तो उसको एक्सेप्ट करो। और बार बार वो प्रॉब्लम आएगी, ये भी एक्सेप्ट करो और ये भी सोचो कि आपको टाइम लगेगा। करेक्ट। आप ये चाहो कि रात में आप सोए हो और सुबह कुछ और बन के निकल जाओ, तो ऐसा नहीं हो सकता। सबसे बड़ी अपने इशू आप तो को यही ये है भी मैम। रिमाइंड कर, हाँ, क्योंकि उनको सडन रिजल्ट हाँ, चाहिए। सबसे बड़ा नहीं, सडन इशू है। रिजल्ट नहीं होता है। हाँ हाँ। यस, इट विल टेक टाइम बिकॉज यू जी। हैव गॉन थ्रू समथिंग। या करेक्ट। आपको कुछ इफेक्ट हुआ है, आपको कुछ प्रॉब्लम आई है, कुछ ऐसी चीज हुई है जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था लाइफ में। करेक्ट। सो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, अपने आप को रियलाइज कराना, अपने आप को बताना, रोज रोज बताना। जी। इट विल टेक टाइम बट इट विल हो इम्प्रूव। जाएगा बट ये इट विल बहुत इम्प्रूव। जरूरी है। यस ये मैम। रोज मतलब ये तो मंत्रा कहीं, इनफैक्ट व्हेन यू आप कहीं पे करोगे ना मेंशन इसको, हमारे जी जी। इस टॉक मैं भी। को, जी जी। यू मस्ट राइट दिस लाइन कि just be patient, it will improve, keep going, keep going, keep going, ओके। and you have all the power। आपके पास सारी पावर है। आप बस इस पे काम करो, एक्सेप्ट करो ये चीज को कि यस, कुछ हुआ है मेरे साथ, कुछ जी मुझसे ही गलती हुई, वॉट एवर जो भी, जी चाहे जिस भी फेज से आप निकल रहे हो, चाहे जी वो करियर को लेके है, आपकी पढ़ाई को लेके है, फैमिली को लेके है, रिलेशनशिप को लेके है, किसी भी चीज को, जी आपको रोज अपने आप को रिमाइंड करना पड़ेगा। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप अपने आप को रिमाइंड कराओ जी कि ये फेज है मेरी लाइफ में, जी। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर, 1.5 साल, 2 साल लग सकता है, बट रोज अपने आप को बोलो ठीक है, इट्स ओके, इट इज गुड। एंड बिलीव मी, इफ यू कीप रिमाइंडिंग दिस टू योर सेल्फ कि नहीं टाइम लगेगा बट हो जाएगा, हो जाएगा। अगर कहीं 1.5 साल लगने हैं ना, तो 8 महीने में ही ठीक हो जाएगा। Okay. मतलब this is a very, यस, it's like a, इट विल। it's a powerful mantra type, but which we keeps on saying हाँ positive things. Things happens. हाँ। Yeah. हम्म। Thank you so much, और अपने ma'am. आप को, ठीक है जो हुआ उसके लिए अपने आप को फॉरगिव करना सीखो।
एंड जस्ट से कि ठीक है, हो गया है, बट इट विल इम्प्रूव, इट विल सर्टेनली इम्प्रूव, इट विल टेक टाइम, एंड बिलीव मी, अगर ये 8 महीने लगने हैं तो 6 महीने में ठीक हो जाएगा, इफ यू कीप रिमाइंड। लेकिन अगर आप रोज यही सोचते रहोगे अरे ये क्या हो गया, अब क्या होगा, ये क्या हो गया, अब क्या जी होगा, जी जी जी। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। सो दिस इज द मंत्रा टू कम आउट ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स। ओके, थैंक यू सो मच मैम, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी पहले उस टॉपिक के रिगार्डिंग, फिर उससे कैसे कम बैक करना है, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज रहते हैं जो लोगों को सामने दिखते हैं, उनको पता है ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्यूशन है, पर वो कर भी नहीं पाते, उनको एक मोटिवेशन, एक गाइड चाहिए पड़ता है। तो आई थिंक यू आर द बेस्ट गाइड फॉर देम। आप बहुत अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन करते हो, उनको चीजों को समझ में आएगा। और जो भी पर्सन सफर कर रहे हैं या नहीं भी सफर कर रहे हैं, उनकी इनिशियल स्टेज है, तो दिस आर वेबिनार विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर देम, तो उनको काफी हाँ, ज्यादा चीजें समझने आएंगी इस वेबिनार से। तो आप या, वही, और ये लव लैंग्वेज समझना इसलिए जरूरी है कि कोई जी, जरूरी नहीं है कि मेरी ही तरह से मेरा पार्टनर रिएक्ट करे। जैसे मुझे बहुत करेक्ट, अच्छा लगता है लोगों की तारीफ करना, जी या किसी के साथ मेरे पास, मतलब मुझे 2-3 चीजें पसंद है इसमें जैसे जी क्वालिटी टाइम भी पसंद है मुझे, जी मुझे तारीफ करना भी अच्छा लगता है, एक्ट ऑफ जी सर्विस ऑफ कोर्स पसंद है। जी, बट कोई जरूरी नहीं है कि मेरा सामने वाला पार्टनर भी वही है। तो करेक्ट, उसको आइडेंटिफाई करो ना, अगर रिलेशनशिप को चलाना चाहते हो उस चीज को आइडेंटिफाई करो। ओके, जरूरी नहीं कि जो मुझे चाहिए वही करेगा मेरा पार्टनर। जी 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 तो जी, जैसे मुझे ये पसंद है लेकिन मेरे हस्बैंड को ये चीज, मतलब एक्ट ऑफ सर्विस, ही डज ऑल द थिंग टू मेक मी हैप्पी, तो मुझे समझ आ गया है कि मतलब ही इज द वन हु इज गोइंग टू मेक मी हैप्पी ऑल द टाइम। जी तो माय रिलेशन इज लाइक बहुत अच्छा चलेगा, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत स्ट्रांग हो रहा है धीरे धीरे, और भी जी विद जी टाइम। जी तो जी जी, वो आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इंस्टेड ऑफ हमें ब्लेम करना, कंप्लेन करना। तो एक चीज तो ढूंढ लो कोई। करेक्ट करेक्ट, वो एक पॉजिटिव थिंग मिल जाती है तो जितने भी नेगेटिव थिंग है वो सप्रेस हो जाती है, और यही पॉजिटिव थिंग आई आई थिंक बहुत हेल्प करती है किसी भी बॉन्ड को स्ट्रांग बनाने में और लॉन्ग टर्म तक उसको लेके जाने में। थैंक यू सो मच मैम वंस अगेन, मतलब आपके साथ सेशन करके बहुत रिलैक्स फील होता है हमेशा बहुत क्लैरिटी मिलती है, बहुत नॉलेज मिलता है, आपके एक्सपीरियंस है। आई थिंक हमारे व्यूअर्स भी बहुत हमेशा खुश रहते हैं, इसलिए वो डिमांड करते रहते हैं कुछ ना कुछ आपके साथ वेबिनार हो, क्योंकि उनको भी काफी ज्यादा पॉजिटिविटी मिलती है, नॉलेज मिलता है, सही डायरेक्शन मिलता है, मेन बात ये है तो आज के वेबिनार के लिए सो मच थैंक यू मैम। आई थिंक अब थैंक यू सो मच शिवांगी फॉर हैविंग दिस टॉपिक। थैंक यस यू। मैम, आप मतलब आपने इतना ज्यादा शेयर किया।